Good evening, everyone. I welcome you on behalf of Darby Foundation. I am Mrs. Shilpa Gore. I'm a teacher, researcher, and educator. And now I am, here for your guidance for Maha TET 2021. मी आपल्या सर्वांचं स्वागत करते. आज आपण महाराष्ट्र TET एक्झामची तयारी कशी करायची, गणित विषय इंग्लिश माध्यमातून त्याच्याबद्दल आपण आज गायडन्स घेणार आहोत. मी शिल्पा गोरे, मी खोपोलीला असते आणि दळवी फाउंडेशन नयन सरांमुळे ओळख झाली. थँक्यू नयन सर. Thank you, Darby Foundation, for giving us such a beautiful platform. And all teachers are here who are passionate to be a teacher. आज TET एक्झाम अशी एक्झाम आहे की ज्याच्यामुळे आपल्याला इन फ्युचर खूपच मदत होणार आहे. एक क्लिअर विजन मिळणार आहे. हाऊ टू टीच अँड गाईड स्टुडंट्स अहेड. तर आपण आजचा वेबिनार सुरू करूया. थँक्यू अभिषेक. Okay, I think screen is seen by all. Not yet. Wait, I will see what's the problem. Yes, we are ready for our maths crash course guidance today. So let me start with our there will be paper 1 and paper 2. So मी syllabus दोन्ही बद्दल सांगते. मैं सिलेबस पहले बता दूं कि पेपर 1 के लिए क्या सिलेबस होगा और पेपर 2 के लिए क्या सिलेबस होगा. So for paper 1, it is number system, whole numbers, place value, comparison, fundamental mathematical operations like basic operations, addition, subtraction, multiplication, division. Then is Indian currency. So even Indian currency, we have that addition, subtraction, and basic mathematical operations there. Now, coming back to prime composite numbers, then once we know about prime and composite numbers, we can do with factorization like LCM, and here it is written GCM. We can say it HCF also, highest common factor. Now we will come to fractions, concepts of fractions. There are types of fractions we will discuss just later on. And then we have again, whenever topics comes, we have that basic mathematical operations with everything like factors, whole numbers, rational numbers. Next comes our arithmetic, unitary method, ratio and proportion, percentage, average, profit law, and then comes our geometrical part, where we can learn about lines, angles, how it is constructed, their shapes, the parameter, their areas. Then last is, data applications. Data applications means pie graph or normal graphs. We will come about the types of graphs also. So now coming to paper 2. So paper 2 also has this basic concepts very much, but at some higher level. So we again have a number system, again arithmetic. Now sets are introduced here. Algebraic expressions are introduced here, and geometry with 2D shapes, 3D shapes are also introduced here.
Same here about bar graph. Same here, but just the level is increased, or we can say the bar graph level is increased high. So let's do the topics one by one here. First, we will go with the number system. As we know, we have to categorize a number in unit place, 10 place, 1000 place, 10,000 place. So for basic, even for till 5th class, we have till 10,000. So I am for paper 1 and paper 2, I am going through one PPT only. So let's do it. So I shall share a number. You can, in chat box, you can write the answers, please. So I will share one example for here. 1 minute. Let me see. So, or in chat box only, I will share the number. You can, divide which is 10,000 or, what is the place of that. So before that, I will go on the next slide also. So we have to understand about place value and face value. Let me introduce you about place value and face value. तो मैं place value और face value को थोड़ा सा differentiation कर रही हूँ यहाँ पे कि दोनों का क्या अंतर है. Before going to our example, तो place value is because of its place कि वो 10th place पे है, 1000 place पे है या 10,000 place पे, lakh पे है. So we have to understand. And what is the face value? Face value means जो दिखता है वो. It's the simple thing you can understand is जैसे 6 is looking like 6 only. So whatever is place it is, whether it is at lakh place या वो 1000 के प्लेस पे हो, उसका जो फेस वैल्यू होगा वो 6 ही होगा. यहाँ पे एग्जांपल हम देखते हैं जैसे कि 7945 7945 पे 9 की प्लेस वैल्यू कितनी है, सॉरी फेस वैल्यू कितनी है. सो कैन एनीबडी, here it is written, but please if you can answer in chat box it would be better. Thank you everyone. Yes, I hope you understand very well. फेस वैल्यू होता है जो दिखता है वही उसका फेस वैल्यू होता है. वेरी गुड. थैंक यू टीचर्स, थैंक यू स्टूडेंट्स. So I'm very happy that you are interacting with me. Let's go for the place value position. So I will come to that expanded form also, but let me give you one example in chat box only. So मैं एक चैट बॉक्स में डाल देती हूँ. आप जल्दी से, मैं ज्यादा बड़ा नहीं डालूंगी लेकिन छोटा सा ही डालने की कोशिश करती हूँ. जिस इसका मुझे प्लेस वैल्यू या आप लिख सकते हैं व्हाट इज दैट नंबर इन वर्ड्स. आई हैव रिटन इन फिगर्स, you can write in words. I will give you 1 minute. At least you have to write in chat box. In chat box, I have written, ma'am, 300974. 300974. 300974. I am saying it. 300974. Yes. So I want you to write in words. I want you to write in that number in words so I can understand you have understand the place value of that number. You have to write that number in. Thank you everyone. Thank you. Thank you Priyanshi ma'am. Thank you Aarti ma'am. Thank you Swapna ma'am. And those who have given earlier also, thank you very much. Chat box is running fast. Thank you so much. So you understand the place value. The first place value is a unit. We go from left to
left to right. So at left it's unit, then comes our tens, then comes our 100, then comes our 1000, then comes our 10,000. I have earlier also put it like this. So what is here? I have to stop this and I will again share it. Something is coming. Yes. So thank you everyone. Here is the for paper 2. If number is bigger, you have to understand that crore thing also. So please understand thing and learn how many zeros are there. Okay. So you can remind. Okay. Thank you. We will do that. Now, I have given you now the second question. We will do the second question. Write the standard form of the following number. First, we have done it. The next we can do. So if you can add just in quick within a second, then we can move ahead also. तो अगर आप add कर दे वो expanded form, even in paper 2 also it comes. It may come. Okay, thank you. So I'm moving ahead. Here is the, divisibility of rules. Thank you, everyone. Thank you so much. So here are the divisibility rules. So we know about 2, 3, 2 is for even number, 3, we have to add that number and see that it is divided by 3. Then for 4, we have to again see the last 2 number is divided by 4. Thank you everyone. So here are the divisibility rules, and I have taken that example of 11, but let me go ahead. You can do that. Now next comes our dividend, divisor, and quotient plus remainder. So such type of questions, yes ma'am. What is the least number must be added to 9,400 to get a number exactly divisible by 65. So we have to understand that when we divide, what is called divisor, what is called quotient, what is called dividend, and what is called remainder. Here are the prime and composite number. Prime number comes in only in one or itself table. So, and composite numbers are the one which comes in other tables also, other than himself or itself. So next, I will not, I will give a demo shape of LCM and HCF here, not taking much time. It's a cake method, like 2 digits are given, how to divide it and how to calculate HCF and LCM. So if you can understand, yes. Okay, let me not hurry, just understand this. I will with the marker, like these are the basic, but sometimes in a hurry also options are so close to each other कि आप खुद ही कंफ्यूज हो जाते हो कि ये करेक्ट आंसर है या ये करेक्ट आंसर है. तो पहले आपको हमेशा गलत आंसर हटाने होते कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, देन यू जंप फॉर द राइट आंसर. हमेशा जब हम मल्टी चॉइस देखते हैं तो पहले ये मत ढूंढो कि वहां पे वो करेक्ट आंसर कौन सा है. आपको ये देखना चाहिए कि कौन सा वाला गलत है. Remove 2, remove 1, then you will be left with one wrong answer, and then it is easy to find that one correct answer. So please go through this. How is HCF? HCF is taken with that least number which is divided by both. अगर 2 नंबर्स है तो दोनों के सारे नंबर्स जाने चाहिए लेफ्ट साइड में. अगर 3 है तो तीनों का. तो जो आता है हाईएस्ट कॉमन डिजिट इज दैट. एलसीएम इज व्हाट कि यहाँ लेफ्ट साइड का रो और नीचे का डाउन वाला रो सब एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन इट इज द लोएस्ट कॉमन फैक्टर. Now here is the types of fraction. Some difficulties are यहाँ से शुरू हो जाती है. So वहां पे मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन मैं आपको अभी बताना चाहती हूँ कि
व्हाट इज नेचुरल नंबर, व्हाट इज होल नंबर, व्हाट इज इंटीजर। तो नेचुरल नंबर हमारा शुरू होता है 1 से, होल नंबर हमारा शुरू होता है 0 से, एंड देन आवर इंटीजर्स आर आल्सो नेगेटिव, -1, -2 एंड पॉजिटिव 1, 2, 3। सो वो भी ध्यान में रखिए। देन अगेन एक बार वो हमें चीज समझ में आ गई, वो नंबर्स का टाइप्स, देन वी विल कम टू आवर फ्रैक्शन। व्हाट is fraction? So fraction is about having a numerator upon denominator. numerator जो ऊपर वाली फिगर है उसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले फिगर को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। अब हम देखते हैं कि फ्रैक्शंस की टाइप कैसे थे। एक बार न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमें समझ में आ गया है। सो वी आर गोइंग फॉर प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे एग्जांपल है यहाँ पे 3/8 then is 7/9, so 3 is smaller than 8 and 7 is also smaller than 9. So here for proper fraction, smaller numerator number. Then improper fraction is जब वहां पे न्यूमरेटर हमारा बड़ा हो जाता है, डिनोमिनेटर हमारा छोटा हो जाता है। देन अब मैं इम्प्रॉपर से डायरेक्ट मिक्स फ्रैक्शन की ओर आती हूँ। इक्विवेलेंट हम बाद में देखेंगे। मिक्स फ्रैक्शन इज दैट क्योंकि हमारा ऊपर का डिनोमिनेटर का नंबर बड़ा है और सॉरी न्यूमरेटर का नंबर बड़ा है, डिनोमिनेटर का छोटा है, तो हम डिवाइड करते हैं। जब हम डिवाइड करते हैं, so we like here example is given 3 2/3, so we have to multiply the whole number here. 3 3s are 9 plus 2, so it is 11/3. So you have to understand improper fraction से मिक्स फ्रैक्शन या मिक्स फ्रैक्शन से हम improper fraction की ओर जा सकते हैं। Now about the equivalent fraction, सीरीज जब आती है, there will be a series also, तो आपको देखना है कि वो सीरीज न्यूमरेटर की सीरीज एंड डिनोमिनेटर की जो भी नंबर्स की दी हुई है सीरीज वो एक टाइप में हो। जैसे अगर 2 का मल्टीप्लाई है तो ऊपर का न्यूमरेटर हर नंबर 2 से मल्टीप्लाई करते हुए हो, और डिनोमिनेटर का नंबर अगर मतलब जो भी वहां पे टाइप है, अगर वो 2 का ही है तो ठीक है, नहीं 3 का होगा तो वो 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। एनी टाइप ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन you have to understand it, what type of equivalent fraction it is. मे बी ऐसा भी हो सकता है कि नीचे का ही एकदम सेम दिया हुआ हो और ऊपर के बदल रहे हैं, तो हम उन फ्रैक्शंस को बोलते हैं लाइक फ्रैक्शंस, मतलब कि नीचे के डिनोमिनेटर सेम है और ऊपर के न्यूमरेटर्स अलग अलग हैं। तो ये हमें कहाँ इनको समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें जब हम बेसिक ऑपरेशंस करेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, तब हमें ये बेसिक चीजें काम में आती कि लेफ्ट साइड कौन जाएगा, राइट हैंड साइड कौन जाएगा नंबर। Here are the formulas for addition and subtraction. I want you to understand this कि जब हम प्लस या माइनस करते हैं तो मेक श्योर कि डिनोमिनेट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, व्हेन वी आर डूइंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन द डिनोमिनेटर्स मस्ट बी सेम। ये पहला रूल है प्लस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड के लिए हम उनको चेंज कर सकते हैं। तो आई विल गो फॉर व्हाइट बोर्ड। मैं यहाँ पे कुछ सिखाना चाहूंगी आपको, सो आई विल यूज व्हाइट बोर्ड हियर। आई एम जस्ट स्टॉप I'm sharing stopping here. I will just share one whiteboard. Okay, यहाँ पे नहीं हो रहा है, मैं वर्ड कर लेती हूँ because Zoom is different. जैसे 4/5 है,
अब लिखना नहीं हो रहा है, सो I think you can understand here is equal to 6/8. Here, 6/8. अभिजीत सर, कैन यू मेक व्हाइट बोर्ड देयर अपेयर? आपके साइड से अगर व्हाइट बोर्ड हो रहा है और मैं एनोटेट कर पाऊँ तो भी देख सकते हैं हम. कैन वी ट्राई दैट? आई विल स्टॉप दिस शेयर. अभी एक्चुअली मैम वो मैंने क्लोज रखा है। व्हाइट बोर्ड. हाँ, व्हाइट बोर्ड बंद रखा है क्योंकि बीच बीच में बहुत से बीच में आ रहे थे, पार्टिसिपेंट कर रहे थे स्क्रैबल, इसलिए तो आप वी नीड टू रिस्टार्ट द मीटिंग इन no, केस no, भी। no, don't do that. हाँ, Don't do that. I will just okay, I will write. Okay, let me do this thing. आपको मैं ओरली भी समझा सकती हूँ. नो नीड टू पैनिक हियर. हाँ, तो मैं अभी यहीं पे समझाती हूँ. यहाँ से क्या होता है हमारा, अगर हमारा डिफरेंट है बी एंड डी, जैसे a अपॉन b है माइनस c अपॉन d है, तो व्हाट वी हैव टू डू, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई that denominator. So b into d will come, and here this d will go to numerator of first fraction, and this b will multiply with c, numerator of second fraction. So it becomes ad minus bc upon bd. So प्लीज अंडरस्टैंड दिस कि जब हमारा दो फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते समय पहले उनको लाइक टर्म्स बनाना होता है, लाइक फ्रैक्शंस बनाना होता है. तो वो कैसे बनाएंगे? हम डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे सेकेंड को फर्स्ट वाले न्यूमरेटर से और फर्स्ट वाले डिनोमिनेटर को सेकेंड वाले डिनोमिनेटर से. एंड फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन इट इज वेरी वेरी इजी. हमेशा हम जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो सामने सामने करते हैं, और व्हेन वी डिवाइड इट what happens here, जैसे a upon b divided by c upon d. So what will happen here in this case, we will convert this division into multiply, and we will take the second fraction का हम reciprocal लेंगे. What is reciprocal? numerator को denominator बनाना है, denominator को numerator बनाना है, like this. So मैं आपको एक ओरली मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ. आप चैट बॉक्स में सिर्फ आंसर भी लिख सकते हैं. एवरीवन, आई विल गिव यू राइट 5/6 डिवाइडेड बाय 3 शिल्पा मैम, मैंने एक लिंक शेयर किया, आप उसमें कर सकते हो ऑनलाइन. व्हाइट बोर्ड ग्रुप में, ये चैट पे शेयर किया मैंने. नो प्रॉब्लम सर. हम लोग यस आई हैव सीन दिस, लेकिन अभी ये वाला बहुत इजी है. अभी मैंने बोला 5/6 इंटू 7/4. आपको ये करना है, डिवाइड करना है. हेलो, यस, डिवाइड 5/6 डिवाइडेड बाय, yes, divided by 7/4. Thank you ma'am, thank you Nancy ma'am. You have to reciprocal of second number. Okay, I'm moving ahead now. I hope this. Here comes our square, square roots, cube and cube roots. So these are the very good example. ये जल्दी से सॉल्व हो जाता है. कोई भी नंबर का आपको स्क्वायर ढूंढना पड़ेगा, ये नंबर दिया होगा तो स्क्वायर रूट ढूंढना पड़ेगा, या फिर व्हाट स्क्वायर, द सेम नंबर इज मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ. जैसे 2 का हो गया 2 into 2, देन कम्स, अगर हमने 50 का लिया तो 50 into 50 दैट इज स्क्वायर ऑफ 50.
और स्क्वायर रूट क्या होगा कि आपका 2500 को आपको डिवाइड करना पड़ेगा, मीन्स यू हैव टू डिवाइड इट टिल लास्ट नंबर, और आपको देखना पड़ेगा कि आई विल गो थ्रू. Okay, here is the whiteboard. अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 2500, so what will be you have to do for square root? So you have to divide it with, so that we can come to square of that number. Easy one. First one is 500. Ma'am, screen is not visible. I have not shared it. Okay. Wait. Here, can you see now, Abhishek sir? Yes, ma'am, it's visible now. Now, yes. Then I was doing this 5/100. And we can cut short it. अब मुझे पता है कि 10 का स्क्वायर 100 है, तो I can no need to do 5 and 5 because आपके पास समय बहुत कम होता है. तो we have to take we can go take shortcuts. हमें सिर्फ आंसर से तो एक 5 लेंगे हम और एक 10 लेंगे. So here it comes. There is no, yes, back sign is there. 50 square. Either you have to find out 50 ka square, or either you have to find out 25 ka square. So I am going to again, I will stop this share. New share I will do that. So we are moving ahead. Now here are the properties also if you want to do it. But I have just done for square. You can do it for cube. Cube का मतलब होता है जैसे हमने अभी 2 बार किया है, तो उस टाइम हमें 3 नंबर का एक नंबर लेना है. Now here is the unitary method we were talking about. So what is unitary method? Cost of many दिया होता है, तो हमें एक का कॉस्ट निकालना है, या एक का कॉस्ट दिया, एक वन थिंग, एनी कॉस्ट ऑफ वन थिंग दिया होता है, तो हमें कॉस्ट ऑफ मैनी निकालना पड़ता है. दैट इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड. तो जैसे यहाँ पे है 24 पेन्स 600, 32 पेन्स का कितना होगा. तो अगर आपको आता है तो आप निकाल सकते हैं, नहीं तो मैं फॉर्मूला आपको अभी बता ही रही हूँ. If anyone knows how to do it, here is the formula. We have to take. You want me to show that question again? Yes. We have 24 pens, 600 cost है, तो हमें पहले 1 का कॉस्ट निकालना पड़ेगा कि एक पेन कितने का होगा. देन वी कैन मल्टीप्लाई, जो आंसर आएगा उसके साथ हमें 32 मल्टीप्लाई करना है. देन वी विल गेट द कॉस्ट ऑफ 32 pens. So here is the formula, cost of 1 pen. तो हमें उस नंबर को हमेशा हम मल्टीप्लाई करते हैं. अगर कॉस्ट ऑफ मैनी दिया हुआ है तो हम उस नंबर को उससे हम डिवाइड करते हैं. Now here is the ratio and proportion thing.
So what is ratio and what is proportion? Let us discuss. A proportion is a comparison of two values expressed in as a quotient. Example, a class has 12 girls and 18 boys. The ratio of girl to boys is, तो गर्ल टू बॉय लिखा है तो पहले गर्ल का वैल्यू लिखना पड़ेगा और फिर बॉय का वैल्यू लिखना पड़ेगा. सो इट विल बी 12/18, दैट इज 12:18, और उसको हम और भी फ्रैक्शन मतलब डिवाइड कर सकते हैं. Now, what is proportion? So, proportion is an equation stating that two ratios are equal. तो कोई भी दो रेशियो दिया होता है, इसका ये है, लाइक यहाँ पे 12/18 इज इक्वल टू 2/3, तो वो प्रोपोर्शन हो गया, प्रोपोर्शनेट दिखा हुआ है. तो ऐसे एग्जांपल्स हमें एग्जाम में आ सकते हैं. Now, what we have to do, proportion and अगर हमें एक चीज पता है और एक चीज नहीं पता है तो हम ये कर सकते हैं. What we will do, cross multiplication is there. Now, coming back to percentage, हमें कोई भी चीज का परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं. तो यहाँ पे एग्जाम्पल डायरेक्ट मैंने लिया है क्योंकि थोड़ा सा परसेंटेज का बैकग्राउंड हम सबको है. सो कलर, देर आर टू कलर्स, नंबर मतलब बीड्स जो है उनके कलर्स है रेड एंड ब्लू. So number of red beads कितने 8 है. Number of beads in blue color is 12. Total कितने हमारे पास 20 है. Then we have a fraction 8/20, 12/20. Then what we do, अब तो कैसे करेंगे हम निकालेंगे, तो उनका परसेंटेज हमें निकालना है. तो हमेशा परसेंटेज 100 के proportion में होता है. So we have to do this and this is very easy. 100 आप कटिंग करेंगे तो आपको ये 40% रेड के मिलेंगे और 60% ब्लू के मिलेंगे. Now here are the very important formulas for profit and loss. So what is profit and loss? I have to make you understand कि मनी का मैंने वो यहाँ पे फिगर नहीं डाला, लेकिन मैं आपको अभी बताना चाहती हूँ कि लाइक कोई भी चीज हम जब सेल करते हैं तो उसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं, और कोई भी चीज हम वी बाय या हम खरीदते हैं तो उसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं. जब अब मैंने कोई चीज खरीदी, पेन खरीदा मैंने, तो मैंने बाय किया, तो उसको बोलेंगे सीपी. अगर सपोज इट इज 5 रुपीज, लेक्सी का पेन मुझे 5 रुपए में मिला, सो सीपी इज 5 रुपीज. अब मुझे मैं एक एज अ बिजनेसमैन, एज अ एंटरप्रेन्योर, मुझे अब मैं 20 बच्चों में मैं वो पेन देना चाहती हूँ, तो व्हाट आई विल डू कि मुझे प्रॉफिट भी चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, कॉस्ट प्राइस से 2 रुपए या 1 रुपया ज्यादा रखूंगी, और फिर वो हो जाता है जब हम ऐड करके कोई कॉस्ट प्राइस में चीज देते हैं तो और उसको बेचते हैं, दैट इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस. अब वो सेलिंग प्राइस या तो कभी कभी प्रॉफिट होता है या कभी कभी हमारा उसमें क्या होता है, लॉस होता है. सो वो व्हेन इज लॉस कि कॉस्ट प्राइस से भी कम प्राइस में हमें मिला, सो दैट इज लॉस. और कॉस्ट प्राइस से ज्यादा अगर हमें मिला तो वो हमारा प्रॉफिट कहलाता है. हाउ डू वी डू दैट, हम वी माइनस दैट. सो हियर आर द फॉर्मूलेस याद ही करके रखने हैं. वहां पे एक फॉर्मूला याद कर लिया, वहां पे जाके आप लेफ्ट राइट करेंगे, उसमें टाइम वेस्ट होता है. हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है क्योंकि हमें फुल पेपर हमें 150 मार्क्स का सॉल्व है. मैथ्स के लिए मिनिमम हाफ एन आवर आप रखिए, ज्यादा से ज्यादा हाफ आवर से ज्यादा मैथ्स पे देना नहीं है. सो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट द टाइम. शायद आपको घड़ी भी नहीं लेके जाने देंगे, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आधा घंटा कितना होता है. तो प्रैक्टिस करना है डेली कि आपका जितने भी क्वेश्चन है 24 हो या 26 हो, वो आपको टाइम लिमिट मतलब 30 मिनट से ज्यादा आपको मैथ्स में देना नहीं है. इसलिए सारे फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए. नेक्स्ट, नाउ कम्स आवर सर्ट्स एंड इंडिसेस. सो व्हाट इज सर्ट्स एंड इंडिसेस? सो जब हमारे नंबर्स बढ़ जाते हैं, जैसे अभी स्क्वायर और क्यूब्स तो हमने सीख लिया, लेकिन नेक्स्ट आता है A4, A5, A1, A19, A20. तो क्या कर सकते हैं हम, तो उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूलेज है.
सो यहाँ से आगे जाने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताना चाहती हूँ जिसके लिए मैं व्हाइट बोर्ड यूज कर रही हूँ अभी। Here it is. So again pencil. तो जब हम बेसिक चीजें, मुझे प्लस और माइनस में आपको बहुत ही बारीक चीजें यहाँ पे बतानी है कि what happens when some integer goes from left hand side to right hand side or right hand side to left hand side. So please understand this. I'm talking about integers. जब होता है -3 और ये +2, so how you will do that? तो हम लिख लेते हैं, बेसिक फॉर्मूले होते हैं प्लस माइनस, आई विल राइट हियर, होता है नेगेटिव, 1 पॉजिटिव नंबर 1 नेगेटिव नंबर, आंसर में उसका सिग्नेचर रहेगा नेगेटिव ओनली। मतलब बेसिक, जब हम बेसिक उसका फॉर्मूला करेंगे कि प्लस इंटीजर माइनस इंटीजर, then we have to do negative, we have to subtract that. Now next comes plus, then again answer will be with plus, we have to add that both number. If we have minus, then we have to add, हमें करते टाइम उन दो नंबर्स को एडिशन करना है, लेकिन आंसर नेगेटिव रहेगा। वो नेगेटिव क्यों रहेगा? क्योंकि उसका ये है, क्या है फॉर्मूला, जो ग्रेटर नंबर होता है उसका साइन हमारे आंसर पे जाता है। तो हम यहाँ पे अभी नंबर्स लिखना शुरू करेंगे, जैसे +3 है, मैं छोटे छोटे नंबर ले रही हूँ ताकि बट ये फॉर्मूला सेम बड़े नंबर के लिए भी होता है। +3 +4 -3 -4 -3 +4. So we will see the answer, what are our answers are with the signature. तो हमने अभी, बहुत ही छोटी चीज है, लेकिन ये हमें कहाँ पे डिस्टर्ब करते हैं, जब हम लीनियर इक्वेशंस करते हैं और बड़े नंबर होते हैं और हम लोग ऐड तो कर लेते हैं और ग्रेटर नंबर का साइन भूल जाते हैं। सो हमेशा हमें जब भी हम करते हैं, जो भी करना है हमें, उससे पहले हम ध्यान में रखेंगे कि नंबर कौन सा बड़ा है और उसका साइन क्या है। तो आंसर पहले ही हम माइनस लिख के रखा है, इसलिए कि माइनस होगा जो भी करेंगे। तो माइनस लिख दिया है आंसर। देन 4 +3 -4, तो हमें यहाँ पे नेगेटिव करना है, माइनस करना है, क्योंकि प्लस माइनस इज माइनस अगेन। सो -4 एंड +3, क्या आंसर होगा? 4 में से 3 गया 1, बट ग्रेटर नंबर का साइन आएगा, सो आंसर इज माइनस हियर। नाउ नेक्स्ट +3 +4, सो आंसर हमारा पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि ग्रेटर नंबर है 4 का, एंड वी हैव टू ऐड दिस, प्लस प्लस इज प्लस, तो 3 + 4 इज 7, -3 -4, तो हमें देखना है, हमने पहले ही ग्रेटर नंबर 4 का यहाँ पे लिख दिया है आंसर में, माइनस माइनस इज प्लस, एडिशन वी हैव टू डू, 3 + 4 इज 7, and then yes, answers are coming. Thank you very much. -3 +4, we have to again write the greater number signature first, plus then we will go for answer 3. हमें minus करना है क्योंकि again minus plus is always minus only. So 4 - 3 is 1. So thank you everyone for giving me that answers. So I'm stopping this share. Back to our PPT. थैंक यू। अब इस पे आते हैं कि अब यहाँ पे देखिए डबल डबल काम है, हमें सिर्फ वो नंबर ही नहीं करना है, हमें ऊपर वाले नंबर जो दिए हुए इंडिसेस है
उनको उनका भी फॉर्मूला हमें सॉल्व करना है। तो हम एक एक करते हैं। मैं 2 या 3 ही एग्जाम्पल आपको सॉल्व करने के लिए दूंगी। जस्ट गिव मी अ मिनट। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स मिल जाएगा अगर ये फॉर्मूलेज आपको याद रहे तो मैं इस पे 1 मिनट लेना चाहूंगी इसका। आई एम राइटिंग द क्वेश्चन हियर, यू कैन आंसर इट। 5 5 का 3 एक्सपोनेंट है। आई हैव टू यूज अगेन। सो यहाँ पे मैं दे देती हूँ, आपको लिख लेती हूँ। 5 3 देन -5 2। व्हाट विल बी द आंसर? सेम इंडिसेस होने चाहिए, सेम नंबर होना चाहिए। सो व्हाट विल बी आंसर? आप अगर फॉर्मूले से मुझे दे सके, आपको अगर फॉर्मूला देखना है, आई विल शेयर दैट स्क्रीन ऑल्सो, फॉर्मूला फॉर दैट। सॉरी, इट्स डिवाइड, यहाँ पे बिंदी डालना रह गया, सॉरी। इट्स अ डिवीजन हियर, माइनस लिखा मैंने। So now you can show the answers, please. It's a 5 cube divided by 5 square. So we have to do minus. Okay. Let's move for basic operation in linear equations. So here are again वही फॉर्मूला प्लस माइनस का जब हम करते हैं तो ये फॉर्मूला यहाँ पे भी काम आते हैं। मैं आपको एक्सपेंडेशन फॉर्म दिखाना चाहूंगी। राइट, एक्स स्क्वायर -7x। अभिषेक सर, व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है?
सॉरी मैम. व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है क्या? Yes ma'am, it's visible. ओके, तो x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, सो यू हैव टू एक्सपेंड दिस. तो कैसे करेंगे? अभी हमें इसको उल्टा करना है, मतलब ऐसे वो x प्लस वाई स्क्वायर का ये फॉर्मूला बनाना इजी है, एक्सपेंडेड फॉर्म दिया हुआ है, उसको आपको बेसिक को लाना है, तो वो थोड़ा हार्ड है, वो सीख लेते हैं हम यहाँ पे. कैसे करेंगे आप? सो यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस नंबर विथ first number. So what it will become? It will become 12x square. What it will become? 12x square. Okay. Now you have to see that this 7 and this 12. You have to do कि दोनों ये दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, और जब हमें इसको -7 उसका ऐसे तो हमें फैक्टराइजेशन करना है 12 का, जिसका कि प्लस माइनस एडिशन या सब्ट्रैक्शन हमारा 7 हो, तो हमें ये चेक करना है. तो कैसे करेंगे हम? सो वी विल गो फॉर 12 फैक्टराइजेशन फर्स्ट. 12 का फैक्टर करेंगे, सो इट विल कम 3 4 6 2 भी होता है 6 into 2, लेकिन अगर 6 plus 2 किया तो क्या होता है उधर? 6 minus 2 is 4, 6 plus 2 is 8, जो कि हमारा 7x है, तो नहीं जा रहा है. तो हम दूसरा फैक्टराइजेशन ट्राई करेंगे. 3 into 4 that is 12. सो क्या होगा? अभी ये जा सकता है, तो ये नेगेटिव है, तो अगर हम दोनों को माइनस लगा दे तो हमारा काम बन जाएगा. So like that we have to find the middle two numbers and then we can go to the basic of that number. तो ऐसा फैक्टराइजेशन करने से आपको आसानी होगी. मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, फर्स्ट और लास्ट नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आता है उसका फैक्टराइजेशन करते हैं, और फैक्टराइजेशन करने के टाइम हमें ऐसा देखना चाहिए मिडिल वाले नंबर का उसका प्लस या माइनस, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, सेम फैक्टर्स हम यूज कर सके. यहाँ पे बहुत मायने रखता है माइनस साइन का. तो अब मैं आपको लिख के करके बताती हूँ कि क्या फर्क पड़ता है. पहले हम 3 लिखे या पहले 4 लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता है. सो आई विल डू हियर x स्क्वायर माइनस, अगर मैंने 3 लिख दिया तो नो प्रॉब्लम, 3x लिखना है, मुझे x लिखना भूलना नहीं है. अगेन क्योंकि मैंने -4 डिसाइड किया था तो मैंने -4 यहाँ पे लिखा है. x अगेन विल कम हियर प्लस 12. अब देखिए, अभी फैक्टराइजेशन जब मैं करने वाली हूँ तो x मैंने, अब इन दोनों का कॉमन मुझे बाहर निकालना है, तो बाहर हम कॉमन निकालेंगे x, इसका x स्क्वायर का 1x, एक x बच जाएगा, साइन रहेगा माइनस, यहाँ से 3x में से x निकाला, डिवाइड किया x, तो हमारा बचेगा 3. देन अब मैंने यहाँ पे माइनस साइन पहले लिख लिया है, तो अब क्या बचेगा? अब मेरे को x -3 यहाँ पे लास्ट में चाहिए, सेम ब्रैकेट चाहिए, तभी वो मेरा स्क्वायर तक जाने वाला है. तो मैं पहले ही यहाँ पे x -3 लिख लूंगी. दिस हैपेंस टू बी, ये जो भी हम कर रहे हैं विद इन अ मिनट हमें सॉल्व करना है, क्योंकि एग्जाम में टाइम नहीं है उतना. तो व्हाट वी विल डू, x और माइनस हटा दिया तो हमारे पास क्या बचता है? 4. सो हियर कम्स x -4. यहाँ पे देखिए x -3 आ गया है, तो इन दोनों का अगर मैं डिवाइजन करूं तो x -3 मैंने पहले बाहर निकाल लिया दोनों में से, उसको मैंने मल्टीप्लाई किया x -4, x के साथ में यहाँ पे जो भी साइन होगा, प्लस होगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस होगा तो माइनस लिखेंगे. तो यहाँ पे है -4. Here comes our expanded form like this. So thank you everyone. We will move to next slide now. So like this, एक बार आपको है ना वो एडिशन फैक्टराइजेशन करना आसान हो जाएगा, तो आगे के फॉर्मूले दिखते बड़े हैं लेकिन बहुत ही इजी है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा इजी है अगर आपको फैक्टराइजेशन और फैक्टर्स निकालने इजीली आ जाएंगे. How do you get that? 1 minute. Let me
बहुत ही समझना बहुत जरूरी है यहाँ पे माइनस साइन क्यों आया। सो ये देखिए, ये नंबर के साथ माइनस है ना। देखिए अब मैं क्या कर रही हूँ, जैसे कि इसको मानिए x-3 एक y है। सो ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे x-3 को y लिखती हूँ, ठीक है, और यहाँ पे देखिए -4 है, और मैंने पहले ही बोला है कि x-3 y है। तो अब इसको हम फैक्टराइजेशन करेंगे। ये मुझे रेड कलर में लेना चाहिए था तो याद आपको दिखता। ये x है, हाँ ये x है, और x-3 को मैंने सपोज अभी के लिए, यहाँ पे एक्चुअली में नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ कि x-3 अगर हम y लिखते हैं तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ये वाले माइनस साइन को बताने के लिए मैं बता रही हूँ कि x-3 y लिखा है मैंने मैंने -4 जैसा है वैसा ही लिखा है, और x-3 को y कर दिया। अब हमें ब्रैकेट में डालना है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, y है, तो मैंने y बाहर बाहर निकाला, ब्रैकेट में लिखा, x यहाँ पे बचा है, तो x माइनस एक्स y डिवाइडेड बाय y अगर मैं करूं, y कट जाता है ना, y क्या होता है, कट जाता है। ये देखिए y क्या होगा, कट गया, क्या बचा मेरा x, तो x आया यहाँ पे। अगेन तो माइनस है, वो मुझे वैसे का वैसे ही लिखना है। अगेन मैं दूसरा नंबर को फिर से y के साथ ही डिवाइड करूंगी, क्योंकि मैंने y बाहर निकाला है। तो y कट गया, क्या बचा, सिर्फ 4, इसलिए वो 4 आया। और माइनस साइन क्योंकि यहाँ पे पहले से ही था, सी हियर। आप उल्टा भी लिखते, अगर आप -4x लिखते और -3x बाद में लिखते तब भी सेम आंसर आता, सिर्फ ब्रैकेट आपका आगे पीछे होता। मैं x-4 पहले लिखा होता, x-3 बाद में लिखा होता। इट्स अ वेरी इजी, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस बेसिक चीजें। एक बार ये चीज समझ में आ गई, फैक्टराइजेशन प्लस माइनस थिंग, आपके आगे आगे चाहे वो क्यूब हो चाहे 4 हो, कोई भी हो, सम बिल्कुल आपको तंग करने वाला नहीं है, आपको बेसिक समझ में आ गया तो। राइट, सो सेम थिंग है, फॉर्मूले से आप बिल्कुल मत डरिए, फॉर्मूले कुछ नहीं करने वाला, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। मेमोराइज अब दो तीन बार एक एक फॉर्मूले का अगर आप एग्जांपल सॉल्व करेंगे, फॉर्मूले भी याद हो जाते हैं 2 दिन में। नेक्स्ट सिंपल इंटरेस्ट के बारे में मैं बात करना चाहूंगी यहाँ पे। सो व्हाट इज प्रिंसिपल, व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड व्हाट इज टाइम। तो हम जब भी बैंकिंग में काम करते हैं, किसी से पैसे लेते हैं 1 साल के लिए 2 साल के लिए, सो इट हियर कम्स अवर सिंपल इंटरेस्ट। सो हम सिंपल इंटरेस्ट मतलब क्या है कि मैंने अभी आपसे 100 रुपीज ले, 100 नहीं, अगर हम 100 की मैं बात नहीं करना चाहूंगी। अगर मैंने आपसे लिया 250 रुपीज मैंने लिए, और मैंने लिए 2% पे, मैंने आपसे लिए पैसे 2%, रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने लगाया 2%। मैंने टाइम बोला कि मैं 2 साल के बाद ये वापस करूंगी। तो मुझे जब मैं पैसा देना, मेरे को पैसा देना है, तब मैं 250 तो देने ही वाली हूँ, और मुझे इंटरेस्ट कितना है वो टाइम, रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट से वो कैलकुलेट करके वो अलग से सिंपल इंटरेस्ट बना लेता है। तो कैसे बनाता है ये हम अभी देखेंगे। तो सेम फॉर्मूला वी कैन डू दैट। यस, हो गया। ओके, सो वी विल डू गो विद दैट सम ओनली। 250 रुपीज है, दिस इज अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट, आई विल राइट P। इतना मैंने अमाउंट लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 है, और टाइम में 2 ईयर्स में आता है, ईयर्स याद रखना, ईयर्स में आएगा टाइम, ईयर्स होगा, मंथ्स होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा परसेंटेज में होता है, और प्रिंसिपल होता है रुपीज में।
सो नाउ वी हैव टू यूज, मुझे इंटरेस्ट कितना आएगा, तो सिंपल इंटरेस्ट मैं बोलूंगी। सो व्हाट इज द फॉर्मूला? PRT अपॉन 100। तो प्लीज कैलकुलेट इट। आपके पास नोटबुक पेन होगा तो जल्दी से आंसर्स डाल दीजिए। थैंक यू। सो अब मैं वही बात आपको बोल रही हूँ, वहां पे बिल्कुल टाइम नहीं होता। आपने PRT अपॉन 100 कर दिया, वहां पे जाके मैं P का फॉर्मूला निकालूंगा, R का फॉर्मूला निकालूंगा, T का फॉर्मूला करो। प्लीज डोंट डू दैट। हमारे पास बिल्कुल मतलब बिल्कुल समय नहीं होता है वहां पे। आप P का भी फॉर्मूला याद कीजिए, R का भी फॉर्मूला याद कीजिए और T का भी फॉर्मूला याद कीजिए। नाउ व्हाट इज अमाउंट, कि मुझे वापस कितने रिटर्न, टोटल अमाउंट कितने रिटर्न करनी पड़ेगी, तो मुझे प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट रिटर्न करना पड़ेगा। सो दैट इज वेरी इजी, कि प्रिंसिपल ले लो जितना भी था 250, इंटरेस्ट जितना है वो लगा लो और ऐड करो, उतना मुझे अमाउंट देना पड़ेगा। सो हियर इज द अगेन दैट थिंग्स। मैंने मैंने बोला था ना कि जैसे आपको एक PRT का फॉर्मूला आपने लर्न किया हुआ है, वैसे ही ये वाले भी फॉर्मूलेज आप लिख के रखिए या याद करके रखिए। ना अगेन हमें कभी कई बार अमाउंट दिया होता है, इंटरेस्ट दिया होता है और ढूंढो प्रिंसिपल, आपको मेन अमाउंट ढूंढना है, तो कैसे आप ढूंढेंगे? तो अगेन यू हैव टू गो थ्रू दिस फॉर्मूला एंड यू हैव टू फाइंड दिस। कितना टाइम हुआ है? एक एग्जांपल ले सकते हैं क्या? हाँ, एक एग्जांपल ले सकते हैं। आई विल जस्ट, मैं ओरली आपको एक एग्जांपल देती हूँ। लेट मी डू दिस, इजी वन लेते हैं। इफ सिंपल इंटरेस्ट आपका 750 है, सिंपल इंटरेस्ट इज 750, SI 750, 3 मंथ्स के लिए है 2250 रुपीज 2250। Simple interest is 750, time is 3 months, and sorry, simple interest is 2250। मेन जो अमाउंट है वो है P is 750 और टाइम इज 3 मंथ। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। चैट बॉक्स में लिख दूं क्या? आई विल जस्ट राइट P is 750, SI is 2250, 22.50, and T is equal to 3 months. You have to find. हाँ, I will give you a minute. अब आपको मंथ को ईयर में चेंज करना है। सी हियर, आपको मंथ को ईयर में चेंज करना है। 3 मंथ्स को ईयर में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे? हाउ मेनी मंथ्स आर, टोटल मंथ्स आर देयर, उसको डिवाइड करिए आप, तो वो टाइम हो जाएगा। अब सब लाइन में है। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट, 3/12 उसको आप ये टाइम हो गया अभी आपका, लेकिन आपको इंटरेस्ट ढूंढना है। सॉरी, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? ये तो सिर्फ टाइम निकला है आपका। अभी आपको मेन क्वेश्चन इज यू हैव टू फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब आपको मेन चीज जो पूछी गई है वो आंसर करना है। सेम आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है।
यस, थैंक यू मैम, थैंक यू। इट्स 12%। देखिए बहुत इजी है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, वहीं पे आंसर होता है। आप एक बार फॉर्मूलेज आप लर्न कर ले तो सिर्फ मैं इसलिए आपको यूनिट्स बता रही हूँ कि यूनिट्स को ही ध्यान करना है। क्या होता है, इतनी घाई होती है, हम यूनिट्स नहीं देखते, 3 को लेके ही आप सॉल्व कर लेते हैं, और उसका आंसर वहां पे मल्टी चॉइस में होता है। आप 3 को लेकर अगर आंसर आप सॉल्व करेंगे सिर्फ 3 को लेकर, तो वहां पे उसका वहां पे मल्टी चॉइस में आंसर दिया होता है, क्यों आपने देखा वो आंसर, आप उसी को टिक कर देंगे। नो, यू हैव टू गो थ्रू यूनिट्स ऑल्सो, कि यू हर एक का यूनिट चेक कीजिए, ईयर में है, परसेंटेज में है, रुपीज में है, कि पैसे में है। यू हैव टू चेक और एवरी बिग थिंग। ये वही वो होता आसानी है, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं क्वेश्चन। Right. I'm moving आगे. I'm moving ahead now. So now compound interest. What is compound interest? नो कैलकुलेटर। मैं वही बहुत बात कर रही हूँ, अभी कल पुलिस एग्जाम भी हुआ था, घड़ी भी रखने नहीं दिया था आपको, सिर्फ हॉल टिकट लेके जाना है और आधार कार्ड बोला होगा, तो ज्यादा से ज्यादा आधार कार्ड अलाउड है। हॉल टिकट कंपलसरी होता है, अभी आया नहीं है, नेट पे भी इश्यूज हो रहे हैं। आप प्लीज 23 के बाद 23 तक रिजॉल्व हो जाएगा सारा। 23 अभी से परेशान होकर टाइम वेस्ट मत करिए एग्जाम का, और 23 के बाद डाउनलोड कीजिए। 2 दिन पहले भी आपको प्रिंट आउट निकल जाएगा, इसलिए उसमें टाइम वेस्ट एनर्जी वेस्ट मत कीजिए कि मेरा हॉल टिकट नहीं आया, मेरा हॉल टिकट नहीं आया। वहां पे नो कैलकुलेटर, नो वॉच, वॉच भी नहीं लेके जाते, क्योंकि घड़ी में भी गैजेट्स होते हैं आजकल, तो वो कोई भी चीज आपको अलाउ नहीं करते हैं एग्जाम में। कमिंग बैक टू अवर टॉपिक, कंपाउंड इंटरेस्ट। व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट? जैसे सिंपल इंटरेस्ट है कि जितना है उतना ही हम लगा रहे हैं। तो व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट? 1 साल के जितना इंटरेस्ट हो गया, नेक्स्ट ईयर क्या होता है कि प्रिंसिपल अमाउंट अगेन देन इंटरेस्ट, और इन दोनों को मिला के वो आगे वाले वो प्रिंसिपल बन जाता है नेक्स्ट सेकेंड ईयर के लिए। प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का जो भी अमाउंट निकलता है, वो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाता है। तो हियर इज द फॉर्मूला टू फाइंड द नंबर ऑफ ईयर्स। तो ये आप फॉर्मूला लिख लीजिए। तो देखिए आगे अब जो भी है फॉर्मूला एक बार मिल गया, तो मुझे प्लस माइनस डिवाइड आता है, तो मेरे को सोल्यूशन तक जाने में कोई परेशानी नहीं है। मेन चीज है फॉर्मूला याद रहना, और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड मूव करते टाइम हमें साइंस भूलने नहीं चाहिए। अगर हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हैं सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, तो पॉजिटिव का यहाँ पे आके वो नेगेटिव हो जाता है, और नेगेटिव का वो यहाँ लेफ्ट साइड आके नेगेटिव का लेफ्ट साइड आके वो पॉजिटिव हो जाता है। ये पूरी बेसिक जानकारी के साथ, मतलब फास्ट भी करना है लेकिन आंखें खोल के करना है। यू हैव टू वॉच इट व्हाट यू आर डूइंग, समझ के, और लेकिन स्पीड में करना होता है वहां पे। तो बिल्कुल घाई, मतलब ऐसी घाई नहीं करना है कि आंसर ही गलत आ जाए। ओके, दिस इज फॉर्मूला, दिस इज फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट ढूंढना है। वो था आपको अमाउंट ढूंढना है तब का है, और ये है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। एक्चुअली में पूरा का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला उसको, तो ये उसका फॉर्मूला है। प्लीज गो थ्रू इट, टाइम नहीं है इसलिए मैं अभी आपको एग्जांपल्स नहीं दे रही हूँ, बहुत इजी एग्जांपल्स थे। आप जो पेपर 1 के स्टूडेंट्स है वो करेंगे क्लास 1 to 5 तक, और पेपर 2 के जो टीचर स्टूडेंट्स है प्लीज गो थ्रू द टेक्स्ट बुक ऑफ 6 to 8। आपके पास अवेलेबल नहीं है तो वो है आपको, आप सिर्फ लाइब्रेरी टाइप कर दे, स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक्स लाइब्रेरी, तो वहां पे आपको ऑनलाइन फ्री आप डाउनलोड कर सकते हैं टेक्स्ट बुक। नेक्स्ट इज स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम। ये बहुत ही, मतलब मैं तो बोलती हूँ कि बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है मेरा, और बहुत ही इजी है एक बार कि अगर हमें फॉर्मूलेस पता हो तो। व्हाट इज स्पीड इज इक्वल टू
व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज टाइम, लेकिन तीनों एक चीज अननोन होती है, दो चीज नोन दी हुई होती है। नो नो मैम, टेक्स्ट बुक के बाहर आता नहीं है वो, रिलेटेड ही होता है। कभी भी स्टेट बोर्ड के बाहर के क्वेश्चंस आपको पूछेंगे नहीं महाराष्ट्र टीएटी के बारे में। 9th 10th के इसके ही आगे वाला लेवल अप होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल ही दूसरे बोर्ड के पूछिए, ऐसे नहीं करते हैं। So whatever it comes, it will be around this textbooks only. So I will give you one example for speed, distance and time, क्योंकि मुझे ये सॉल्व करके लेना था आपसे। So I will just give you one example orally only. Yes, आपको नो मैम, द नंबर्स आर वेरी लेस। आप इतना इतना मत उसमें सोचिए, बहुत ही जल्दी ऐसे होते हैं कि एब्रिविएशंस निकल जाते हैं आपके। यस, मैथमेटिकल पेडागोगी होता है, तो आपको मैथ्स कैसे पढ़ाना चाहिए उसके सीक्वेंस या उसके बारे में होता है वो। हम क्योंकि एज ए टीचर बीएड किया हुआ है हमने, वो सब हमारा मैथ्स बीएड में हो चुका है, तो वो बहुत ही आसान है, इतना भी मुश्किल नहीं होता है हमें अंडरस्टैंड करना। सो आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन अबाउट स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। प्लीज राइट, अगर आपके पास नोटबुक है। सो आई विल गिव यू इजी वन। 150 meter long passenger train passes goods train 100 meter, okay, long, traveling in opposite direction. If the speed of the passenger train goods train be 39 km/h and 21 km/h, how long will it take to cross each other? तो मैं आपको क्या गिवन है वो मैं बता रही हूँ आपको। टोटल डिस्टेंस है उनका 150 + 100 मीटर, 150 + 100 मीटर, और दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो वो कब एक दूसरे के ये होगी। सो एक का स्पीड है 39 किलोमीटर और दूसरे ट्रेन का स्पीड है 21 किलोमीटर, तो आपको रिलेटिव स्पीड निकालनी है। Yes, hope you have understand the question. I will repeat it. A 150-meter long passenger train passes a goods train 100-meter long traveling in opposite direction. So if the speed of the passenger train and goods train be 39 km and 21 km/h, how long will it take to cross each other?
Sorry, I was on mute. I have to go through again. So here is, this is point. This is line which has two open ends. उनके ends खुले होते हैं. Line segments में point at the end होते हैं. So we can calculate like a 3 centimeter, 3 meter, जो भी है उसका amount वो स्पेसिफिक होता है क्योंकि क्लोज एंड होते हैं. रे में क्या होता है, रे में एक क्लोज एंड होता है, एक ओपन एंड होता है. नेक्स्ट कम्स व्हेन टू सच रेज की एक पॉइंट क्लोज है और एक खुला हुआ है. व्हेन सच टू रेज कंबाइंड वी कॉल इट एंगल. नाउ हियर कम्स आवर इंटरसेक्टिंग लाइंस. टू लाइंस व्हेन इंटरसेक्ट एट ईच अदर द पॉइंट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग पॉइंट. अब ऐसे है कि वो कोई भी एंगल में एक दूसरे को काट रहे हैं, लेकिन अगर वो परपेंडिकुलर एट 90 डिग्री एक दूसरे को काटे, देन द एंगल्स आर at right angles. Now again another thing can happen कि दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल चलेगी, वो कभी भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं, इंटरसेक्ट नहीं होंगे. Now we learning about the angles. What are the angle types of angles? So here is the zero angle. Zero angle means what? We can't see the other ray also, मतलब other side, क्योंकि एक वो दोनों रे एक दूसरे के ऊपर merge हो गए. That is called zero angle. Right angle is when one ray is perpendicular to the another ray, it is called 90 degree. So 90 degree angle होता है. What is straight angle? So in the one ray is opposite in to other ray. So वो पूरा 180 डिग्री हो जाता है. So that is called total 180 degree. Now complete angle. Oh, I have moved ahead. What is complete angle? If the ray rotates, पूरा का पूरा rotate होके अपनी जगह पे आ गए. So we have that 180 into 180. So we have, it's called 360. वो अभी इस लेवल पे पूछते नहीं है. That is beyond this. एग्जाम में तो इसमें आने नहीं वाला है. Now acute angle. What is acute angle? Complete angle. Complete angle is, see here. If I can annotate, यहाँ पे annotate भी नहीं होगा. So see this B point is again going back. B ray is again moving head like this and it comes here. तो zero angle में तो वो तो खुला ही नहीं angle. 360 में हो गया है कि पूरा खुल के वो इस पे आ गया है. तो मैम शायद टीट एग्जाम में ये वाला एंगल नहीं पूछेंगे, लेकिन मैं आगे वाले एंगल पे के और बढ़ती हूँ. एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल. सो व्हाट इज एक्यूट एंगल? which is less than 90 degree. What is obtuse angle? Which is more than 90 degree but less than 180 degree. That is called obtuse angle. और complete angle बनाते टाइम जब वो 180 डिग्री से ज्यादा हो जाता है, जैसे 181 हो गया, 190 हो गया, so मतलब that is called reflex angle. Now we are coming on the part जहाँ पे two lines intersect कर रही है या third line is intersecting the parallel lines. तो वहां पे कौन कौन से angles होते हैं? Supplementary angle. Supplementary angle. What is supplementary angle? Two angles whose sum is 180 degree and are called supplementary angle. And either is called the supplement of each other. ये देखिए जैसे 1 and कौन सा होगा बताइए? In chat box, please write which angles are supplementary angles. So 1 and 2 कोई भी हो सकता है. आपने मतलब अपने बाजू वाला एंगल होगा क्योंकि वो 180 टोटल करता है. ओके, इट्स नॉट अबाउट 1 and 5. It's either 1 and 2, 1 and 4 भी हो सकता है supplement angle. Now what is complementary angle? Two angles whose sum is 90 degree and are called complementary angle. Either is called complement of
एक एंगल देंगे तो दूसरा हमको फाइंड आउट करना है. सो दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. नाउ व्हाट इज कॉन्ग्रुएंट एडजेसेंट एंगल? See, two angles, one side to adjust angles if they have common vertex होगा, common arm होगा, other arm lying on opposite side of his common arm. तो ये जो है, ये सारे कौन सा एंगल होगा, ये सब फिक्स अपने माइंड में आप बैठा लेंगे. तो आइदर आपको या तो प्लस माइनस करके आंसर देना है क्वेश्चन में, या फिर आपको डायरेक्टली लिख के देना है वहां पे विच आर द एडजेसेंट एंगल, विच आर द लीनियर पेयर, ऐसे आ सकता है क्वेश्चन. अब मूविंग, मुझे अब 4 टॉपिक रह गए. ग्राफिकल भी है एंड 2D एंड 3D शेप्स का भी है. तो आई वांट इट टू कंप्लीट बिफोर 7. Let me discuss about the area and perimeter. What is the difference between 2D shapes or 3D shapes? So rectangle and cuboid. Rectangle is 2D shape, cuboid is 3D shape. Square is 2D shape, cube is 3D shape. तो दोनों में क्या फर्क है? तो फॉर्मूले की तरफ हम जाने ही वाले, लेकिन एक बार आप शेप समझ ले कि जैसे कि मुझे इस वॉल पे अगर पेंट करना है तो ये सिर्फ रेक्टेंगल है. लेकिन अगर मुझे एक बॉक्स है और उसके अंदर पानी भरना है या मिट्टी भरनी है कोई बॉक्स में क्यूबॉइड शेप में, तो दैट इज कॉल्ड क्यूबॉइड. मतलब उसके अंदर वॉल्यूम इज उस एरिया के अंदर मैं कोई चीज भर रही हूँ. so that is called 3D shape. Means either it is cube, cuboid, you can say sphere. Circle is 2D shape. किस बिल्कुल सामने दिखता है. सर्कल मतलब मैं अपने पास में रख we are looking from the upside. सामने ऊपर से देख रहे हैं तो मुझे सिर्फ रेडियस दिखता है एंड सर्कल. लेकिन स्फेयर में क्या है कि जैसे एप्पल हो गया, अब मैं एप्पल या बॉल का आपको बता सकती हूँ कि हम उसको काट भी सकते हैं, राइट. हाइट होता है उसमें, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट. तो स्फेयर में क्या होगा कि हम रेडियस 3 साइड से भी बॉल को अगर हम एप्पल की जैसे काटेंगे, वी कैन कट इट, दैट इज कॉल्ड स्फेयर. तो सर्कल इज 2D शेप एंड स्फेयर इज 3D शेप. तो एक बार हमको ये समझ में आ गया तो हमें फॉर्मूला लर्न करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी. तो वी हैव टू गो. ये हमने बहुत बार किया है, और अब इस हफ्ते में यू हैव फॉर्मूलेस. आप हर टॉपिक एक दिन को डिसाइड कर लो कि इस दिन बैठ के मैं ये वाले चैप्टर के फॉर्मूलेस लिखने वाला हूँ. पढ़ने से कुछ फॉर्मूला याद नहीं होगा. आप ये देखिए, रिटन एग्जाम है, रिटन प्रैक्टिस कीजिए. आपकी रिटन पेपर है तो आप रिटन में फॉर्मूले लिखिए. डोंट ओरली आप लर्न में इसमें मत पढ़िए, क्योंकि वो हवा हो जाएंगे. आप लिखेंगे उसको तो आपको समझ में आएगा कि क्या डिफरेंस है पहले वाले और दूसरे वाले फॉर्मूले में. तो आपका लिखना बहुत जायज है. इस हफ्ते आप रोज एक टॉपिक सुबह आप डिवाइड भी कर सकते हैं. सुबह एक चैप्टर का लिख दिया, 10 मिनट लगेंगे आपको 10 फॉर्मूले लिखने के लिए, और सेकेंड टॉपिक आपने शाम को लिख लिया. ऐसे आप हफ्ते भर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पूरे के पूरे जितने भी फॉर्मूले, जितने भी टॉपिक्स है, आप पूरे, अभी भी 2 हफ्ते हैं. टुडे इज ओनली आई थिंक 18 और टुडेज डेट इज 19 ओनली. सो वी हैव 10 मोर डेज, 9 मोर डेज. 30th को हमें एग्जाम में जाना है. 30th डे आप ओरल कीजिए, लेकिन for this 9 days, 10 days, you write and practice all this formula. अब मैं यहाँ पे आपको I will not read these formulas. Just I am telling you, हमें एरिया ढूंढना है, हमें पेरीमीटर ढूंढना है. So एरिया होता है अंदर का चीज, पेरीमीटर होता है आपके साइड का टोटल. ओके, डायमीटर इज आपका अंदर का डबल ऑफ रेडियस. सर्कमफ्रेंस इज टोटल दैट बॉर्डर लाइन ऑफ सर्कल. So that is called diameter. Here comes our volume. Volume मैंने अभी बताया आपको, length, breadth and height, क्योंकि मुझे उसके अंदर बनना है. तो एरिया मतलब मुझे उस रेक्टेंगल को पेंट करना है या कुछ कलर देना है या टाइल्स लगाना है, देन आई विल कवर दैट एरिया. लेकिन कोई चीज में अगर मुझे उसमें भरना है तो मुझे वॉल्यूम ढूंढना पड़ता है. इसलिए वॉल्यूम के फॉर्मूले से एरिया, अगर मुझे कलर करना है, टाइल्स लगाने है, तो मुझे एरिया ढूंढना है. तो एरिया के फॉर्मूले है एंड टोटल सरफेस एरिया.
तो कितने सरफेस एरिया है वो हमें देखना पड़ेगा। तो जैसे बात आती है सिलेंडर एंड कोन की, तो मुझे बेस का एरिया एंड साइड का ऊपर का एरिया मुझे देखना पड़ता है। सो हेयर कम्स आवर टोटल सरफेस एरिया के अलग फॉर्मूले। नाउ हेयर इज द टाइप्स ऑफ बार ग्राफ। So what are the bar graph, histograph, frequency table and circle graph? I have another PPT. I will share that PPT. So what is bar graph? तो ग्राफ में जो भी होता है हमें डेटा हैंडल करना पड़ता है। तो इट्स ऑल अबाउट डाटा। तो क्या क्या होता है, ईच फिगर हमें ऑब्जर्व करनी पड़ती है। या तो डायरेक्ट ग्राफ दिया होगा तो हमें लिखना पड़ेगा ग्राफ देख के कि फिगर्स लिखने पड़ेंगे। अभी यहाँ पे ऐसे ही होगा कि ग्राफ देखते हैं और फिगर्स लिखनी होगी, क्योंकि अभी हमें बनाना नहीं है ग्राफ इस एग्जाम में। हम लास्ट सैटरडे को, जब हम सैटरडे को डिस्कस करेंगे ना मैडम, तब हम पेपर पूरा डिस्कस करने वाले हैं। पेपर 1 भी डिस्कस होगा, पेपर 2 भी डिस्कस होगा। उस टाइम हम अच्छे से एग्जाम्पल्स के साथ में लास्ट डे हम करने वाले हैं। तो प्लीज बी देयर फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। पेपर 1 150 मार्क्स का पूरा सेट मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, पेपर 1 का भी और पेपर 2 का भी सैटरडे को। प्लीज बी देयर फॉर मोर एग्जाम्पल्स। Now here comes our graphical representation. टेलीग्राफ होता है, पिक्टोग्राफ होता है, बार ग्राफ होता है, डबल बार ग्राफ होता है, हिस्टोग्राम एंड पाई चार्ट। we will discuss what is going on here. So what is frequency distribution? तो आपको ये टेली बॉक्स दे देते हैं, नंबर दे देते हैं। either this will be given, this is the graph here. तो यहाँ पे 1 2 3 4 and fifth one this line is also calculated. Then here it is written the figure. तो ये पूछ लेंगे आपसे। Now what is pictograph? पिक्चर्स दिए होंगे, उसके ऊपर से आप पेपर 1 में भी आ सकता है। ये वाला जो इजी वाले ग्राफ्स है वो पेपर 1 के लिए है। नेक्स्ट इज बार ग्राफ। I will discuss this bar graph here. See there, यहाँ पे L के कौन से है और L एक्सेस पे क्या, सॉरी X एक्सेस पे क्या है और Y एक्सेस पे क्या है, ये आपको फिगर आउट करना है और ऑब्जर्व करना है। और बाद में आपको जो भी पूछा जाएगा, तो मेरे ख्याल से इतना मुश्किल नहीं है बार ग्राफ देखना और उसको फिगर आउट करना क्या पूछा गया है। नाउ दिस इज डबल ग्राफ कि ये ग्राफ दिया होगा, ये दिमाग में आपको ये वाला ग्राफ बनाना है और फिर आपको आंसर करना है ग्राफ देख के। नाउ हियर इज द हिस्टोग्राम। वहां पे आपको टैली में लाइंस दिए हुए थे, यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे फिगर्स दिए हुए हैं। तो हियर कम्स आवर आंसर्स। सो यहाँ पे ये वाला ग्राफ दिया होगा, ये फिगर बनाना है हमको मन में, माइंड में, and then we have to answer whatever they have asked. So pie chart is the easiest one and hard one also. They will give something. See here. ओके उन्होंने पाई चार्ट फिगर नहीं दिया हुआ है, उन्होंने बताया है ये फॉर्मूला। सेक्टर्स में डिवाइड कर देते हैं, दो दिए होंगे परसेंटेज, तीसरा ढूंढने को बोल सकते हैं। तो इसलिए हमें ये वाला फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। तो ताकि अगर हमें वहां पे 4 या 5 फिगर पाई चार्ट के 4 या 5 डिवीजन होंगे, तो 4 दिए होंगे, 5 हमें ढूंढना पड़ेगा कि कितना परसेंटेज बाकी है 100% में से। तब हम ये फॉर्मूला यूज करके वो परसेंटेज, वो जो पूछा गया है वो परसेंटेज हम निकाल सकते हैं। इट्स वेरी वेरी इजी वन। सी हियर इट इज डिवाइडेड इनटू 3, तो 2 दिए होंगे तो तीसरा हम आराम से निकाल सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन। फीडबैक लिंक अभिषेक सर डाल रहे हैं चैट बॉक्स में, आप प्लीज वहां पे फीडबैक दीजिए। फीडबैक फॉर्म में आप प्लीज फीडबैक दीजिए, आपको कैसा लगा, ताकि आगे आने वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें मैं आपको और मदद कर पाऊंगी।
मैं एक और बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि हमारा हम आपको कोई कुछ क्वेरीज होंगी तो आप टीचर टॉक ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आई विल जस्ट शेयर दिस स्क्रीन ओनली कि आपको टीचर टॉक ऐप पे आप कैसे जा सकते हैं। तो आई विल stop this share. Okay. So here is the either you have to from Play Store you can find it. So this is the, I will show you again how it looks. So this is the टीचर टॉक ऐप फॉरम। आपको पहले वहां पे साइन इन करना पड़ेगा। एक बार साइन इन हो गए आप परमानेंटली हमेशा के लिए, फिर आपको बार बार यहाँ पे साइन इन या लॉग इन करना नहीं पड़ेगा। एक बार में ही आपका वन क्लिक कोई भी चीज आसान है। आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं, आप यहाँ पे क्वेरीज पूछ सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑफर फॉर टीचर्स है, वो भी आप ले सकते हैं। मैं आपको आज बताना चाहूंगी कि हम कहाँ डिस्कस कर सकते हैं। सो सी हियर डिस्कशन फॉर्म इज ओपन फॉर मराठी मीडियम, इट इज देयर। फॉर इंग्लिश मीडियम यू विल क्लिक दिस and you will just comment your questions here. So from here you can ask, I will answer here all your questions. Thank you everyone. Thank you Abhishek sir. So I will just go Thank back. you so much, ma'am. Okay, yeah. सगळ्यांचं मी धन्यवाद देते। प्लीज फीडबॅक लिंक भरा। आपण सर्वांनी इथे येऊन माझ्यासोबत सोबत दिली, मला एनर्जी मिळाली आणि मी हे सर्व सेशन कंप्लीट करू शकले। सो थैंक यू एवरीवन। प्लीज अगर आपको कल के इसमें आना है, वापस से सेशन आना है, तो आपको सेम लिंक से ज्वाइन हो सकते हैं। इट्स अ रिकरिंग लिंक, रोज लिंक बदलने नहीं वाली है। आप सेम लिंक पे क्लिक करेंगे। आज जो लिंक मिली है आपको 5:30 को, सेम लिंक इट इज गोइंग टिल सैटरडे, इट विल बी द सेम लिंक। तो वो काम हमने आपको आसान कर दिया है। प्लीज कम एंड ज्वाइन, बी देयर फॉर टुमारो सेशन ऑल्सो। मैं ज्यादा से ज्यादा हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिला के आपसे क्वेश्चन पेपर्स और सब्जेक्ट्स डिस्कस करना चाहूंगी, ताकि आप छोटी से छोटी बात ध्यान में रखें एग्जाम के टाइम पे। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू अभिषेक सर। We can close it now. अभिषेक सर आप फीडबैक लिंक में डालेंगे टीचर टॉक ऐप का लिंक भी, ताकि लोग वहां से भी डाउनलोड डायरेक्टली कर सके। Yes, ma'am. I am posting this. Okay. So feedback link is given and teacher talk app is also given. So be there on teacher talk app and please kindly feedback, give your feedback. Thank you everyone. So Abhishek sir, may I leave now? Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. And all the other teachers, we will be using same link for tomorrow as well at same time. So tomorrow we have child development and pedagogy. Please fill the feedback form to help us understand how was our webinar workshop.